کہ آج اپنے جو بھی آپ کا پہاڑ ہے, آپ کی جو بھی پریشانی ہے, وہ اس نعرے کے ساتھ ہی آپ کی زندگی سے جاتی ہے. یعنی پتہ میرا ایمان ہے کہ وہ اب چلی گئی ہے. ذرا زور سے ہلیلویا ہلیلویا. خدا آپ کو برکت دے. آئیے ہم خدا کے زندہ کلام کی طرف آئیں گے. مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل, مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اور اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت. مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت. آپ بس بائبل مقدس سے ہے تو آپ نکال لیں, اگر نہیں ہے تو آپ نے متوجہ ہونا ہے. سنیے گا, آج اپنے کلام سننا ہے اور اس کے اینڈ میں آپ خدا کے حضور سے آپ کی زندگی میں آپ نے صرف سننا ہے. باقی کام خدا کی ذات میں کرنا ہے, پاک روح نے کرنا ہے. آپ نے سننا ہے, بندنوں کو اس نے توڑنا ہے, پہاڑوں کو رضا رضا اس نے کرنا ہے. آپ نے سننا ہے. یہاں لکھا ہے, تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا ہے کہ جا کر پھل لاؤ. میری بہنوں نے بھی سننا ہے, سب نے سننا ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ نے سننا ہے, اور سننے کے بعد جب ہم کلام ختم کریں گے آپ کی زندگی کے اندر معجزہ ہو چکا ہوگا. آمین آمین. سنیے, تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. لفظ لکھا ہے میں نے تمہیں چن لیا, کوئی شک کی بات نہیں ہے اس کے اندر. چنوں گا نہیں لکھا ہوا, لکھا ہے چن لیا. پکی گل ہے, کچی گل کوئی نہیں, پوری گل پکی, اٹینٹک کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے, یعنی پکی گل ہو گئی. آگے لکھا ہے تم کو مقرر کیا ہے کہ جا کر پھل لاؤ. جا کر کیا لاؤ جی؟ بولنا بھی نہ, جا کر کیا لاؤ؟ پھل لاؤ. اور لکھا ہے تمہارا پھل قائم رہے تاکہ, آگے لکھا ہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے. پاک کلام کا پڑھا اور اس نے جناب سب کے لیے باعث برکت ہو, پاک کا شکر ہو. یہاں سنیے گا, اچھا آپ نے باتیں نہیں کرنی, ہمیں دھیان میں کر دیں گے. یہاں لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. یعنی ہمیں کس نے چنا ہے؟ اونچی بولو, کس نے چنے ہیں؟ یسوع مسیح نے چنے ہیں. کس لیے چنا ہے ہمیں؟ اس نے چنا ہے, یسوع مسیح نے چنا اس لیے کہ کیا لے کے آئیں؟ تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم کیا لاؤ؟ پھل لے کے آؤ. کیا لے کے آؤ جی؟ کیڑا پھل لے کے آؤ؟ امرود, کیلے, ہے نا, جڑے نہیں لب رہا بھی لب لے آؤ. ایسا جو پھل لے کے آؤ, کیڑے پھل لے کے آؤ؟ روح کے پھل یسوع کو چاہیے. یسوع تو خود پھل دیتا ہے یہ آپ کو. یسوع آپ کو یہ پھل دیتا ہے, آپ کو ضرورت ہے اس کی, یسوع کو نہیں ضرورت. یسوع خوشی کی ضرورت ہے نہیں ہے, یسوع خوشی مانتا ہے. یسوع کو اطمینان کی ضرورت ہے نہیں ہے, یسوع اطمینان دیتا ہے. یسوع کو ایمانداری کی ضرورت ہے نہیں, یسوع آپ کو ایماندار بناتا ہے. کیا پھر یسوع مسیح کون سے پھل کی بات کر رہا ہے کہ میں تمہیں مقرر کیا ہے کہ جاؤ, اور تمہیں کیا کیا ہے؟ میں نے مقرر کیا ہے جاؤ کیا لے کے آؤ؟ پھل لے کے آؤ, اور تمہارا پھل قائم بھی رہے. اور جب تم اس طرح آؤ گے تو پھر لکھا ہے کہ میرے نام سے باپ سے جو کچھ باپ سے مانگو گے وہ تم کو دے. اب یہاں پر اگر آپ وہ پھل لے کر آتے ہیں جو یسوع مسیح آپ سے مانگتا ہے تو یہ بات پکی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر پہاڑ جتنے مرضی بڑے ہوں, آپ کی زندگی کے اندر بڑی بڑی تکلیفیں کتنی بڑی کیوں نہ ہوں, وہ یسوع مسیح کے سامنے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی. پکی گل ہے, مان کر ہے, پکی گل ہے.
यार बोलो तो सही ना, सुनते रहो, हमें लगा मैं गला ही बोलने दे। बोलो हाँ जी, हाँ मुझे पता लगे जागरण दे है ना। अगर आपका ईमान है, यहाँ से इकरार करना है, यहाँ से ईमान लाना है, ऐसे ही है जी बहन जी। तो ये मुंह खोल लिया नहीं इकरार कितना है, ये सुना प्यार करना है, ये सुना प्यार करना है, एक अदा इकरार हो यार। इकरार मुंह से करना है, इकरार यीशु से प्यार करता है, हाँ करता हूं। ईमान रखता है, हाँ रखता हूं। यीशु शिफा दे सकता है, हाँ मेरा ईमान है, क्योंकि उसने बाइबल मुकद्दस के अंदर ये मुझे सिखाया, ये दिखाया कि मैं अंधों की आंखें खोल देता हूं, मैं लंगड़ों को चला देता हूं, मैं बड़े बड़े बीमारों से कहता हूं जहां तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया तो वो अच्छा हो जाता। हाँ मेरा ईमान है ईमान। एडा मान कच्चा यार ताड़ा, तो हाँ है। हाँ बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं आपकी जिंदगी में लिखना चाहता हूँ, मलाकी 2 बाप उसकी दूसरी है। सुनिए सुनिए आप, आज मैं चाहता हूँ आप यहाँ से जब जाए ना तो खाली ना जाए कोई। और मैंने खुदा से कहा मैंने ये सारी रूहें जीत के जानी है, कोई खाली नहीं मैंने जाने देनी, मैंने सारी खरीद के जानी है। आज यहाँ मैंने रूहें खरीदनी है, और मेरे पास जो पैसा है ना वो तो पाया हुआ सोना जो है ना वो ये है, इससे खरीदनी है मैंने। हालेलुया। अब सुन, मलाकी आपने सुनना है, मलाकी 2 बाप उसकी दूसरी आयत। यहाँ लिखा है काहिनों से खुदा बात करता है तो काहिनों के साथ कलीसिया भी होती है, पास्टर है तो उसकी कलीसिया है। तो यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है अगर तू मेरे यहाँ सुनवा ना हुआ, यानी अगर तू मेरी बातों को ना सुनेगा तो मैं क्या करूंगा, 2 काम करूंगा। अब यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों है? कलाम सुनने के लिए आए हैं। अच्छा बहन बह जा, छोटी बहन बह जा, तेरी मेहरबानी में कलाम सुना दे, टाइम बड़ा थोड़ा जी है। यहाँ लिखा है अगर तू मेरी बात को ना सुनेगा तो मैं 2 काम करूंगा। बाजी 2 काम करा, बहन जी 2 काम करा। अगर तू मेरी कलाम नहीं सुनेगा तो मैं 2 काम करांगा। बनी इस्राइल बना आखिर जमाने के अंदर ऐसी होगी, ਉਹਨੂੰ कोई शय नजर नहीं आती सी, बल्कि ना जिहड़ा काम मैं कर रहा ठीक है, खुदा भी ठीक है, तू भी ठीक है, मैं भी ठीक, आ भी ठीक है, सारे ठीक है। खुदा ने कहा अगर तू 2 काम ये मेरे कलाम को नहीं सुनेगा मैं 2 काम करूंगा। पहला काम क्या लिखा खुदा ने सिखाता है, बनी इस्राइल से खुदा कहता है अगर तू मेरी ना सुने और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनजर ना रखे। यीशु मसीह जब कलाम खोलते हैं तो हमारा ईमान है कि यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद होता है ना, ऐसे ही है ना, क्योंकि लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, ऊंचा बोलो, कलाम खुदा के और कलाम ही, इसका मतलब तो ये खुला है तो खुदा यहाँ पर मौजूद है। जी बहन जी मौजूद है, ईमान है सारे अंदर, हाँ जी है जी। अब यहाँ लिखा है अगर तू मेरे घर में आता है, यानी मेरे कलाम के पास आता है, उसको तू नहीं सुनता है तो मैं 2 काम करूंगा। लिखा अगर तू मेरी इबादत को, मेरी तमजीद को मद्देनजर नहीं रखेगा, मद्देनजर से मुराद है आया तू खुदा के घर में है लेकिन ध्यान तेरा पीछे है, बैठा तू खुदा के पास है लेकिन तेन बसियां आंडियां ने, बैठा तू खुदा दे हाथे ते सुन कलाम आया है ते मुंह से इकरार नहीं कर रहा, तो अगर तू मेरी इबादत, मेरी तमजीद को मद्देनजर नहीं रखेगा, लापरवाही से मेरी इबादत के अंदर बैठेगा, और जब मैं बात कर रहा हूं, मैं जब कलाम सुना रहा हूं, खुदा कहता है, फरमाता है कि अगर मैं कलाम की बात तुझे सुना रहा हूं और तू उसे नहीं सुनेगा तो मैं 2 काम करूंगा। पहला काम ये क्या करूंगा कि तेरी सारी नेमतों को मलऊन कर डालूं। पहला क्या काम करूंगा, तेरी सारी नेमतों को मलऊन का मतलब है लानती कर डालूं। अपने कान खोले, इसलिए मुकाशवा कहता है जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या, फिर बोलना चिंगू ना कर, रूह कलीसियाओं से क्या। अगर तू ध्यान से नहीं सुनेगा, तमजीद यहाँ इबादत में बैठा हुआ
मद्देनजर नहीं रखेगा, लापरवाही से इबादत करेगा, तो मैं पहला काम क्या करूंगा, तेरी सारी नेमतों को, तेरी मट्टी, तेरी औलाद, तेरा घर, तेरी हर एक चीज को मलऊन कर डालूंगा। इतना जरूरी है कि खुदा के पास आने के लिए एहतियात कर। फिर दूसरा काम क्या करूंगा, मेरी बहनें भी सुने, मैं चाहता हूं आप जब इबादत में बैठे हो, चाहे मैं खड़ा हूं, कोई भी खड़ा हो, आप इस तरह आए कि आपकी नेमतें बाबरकत हो जाए, आपकी बीमारी शिफा में बदल जाए, आपका कर्ज आपके हाथों से उतर जाए, आपके पास इतना कुछ हो कि आपका हाथ ऐसे ना हो, यहाँ बाजी खड़ी हो और आपका हाथ यूं हो, यूं ना हो। हालेलुया। तो आइए इस बात को सीखेंगे हम। यहाँ लिखा है कि अगर तू मद्देनजर नहीं रखेगा तो पहला काम सब चीजें मलऊन। दूसरा काम सुनिए सुनिए, दूसरा लिखा है मैं तेरे बाजुओं को बेकार कर डालूंगा। बहन जी सारे सुनो, लिखा है मैं तेरे बाजू क्या करूंगा। अब इंसान का जोर उसकी बेटियां और उसके बेटे होते हैं। अगर मेरा ध्यान किसी ने बात सुनी, लिखा है मैं तेरी बाजुओं क्या कर दूंगा, बेकार कर दूंगा, यानी कि तेरे बच्चे, तेरी बेटियां, बेटे क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। कोई नशे में है, कोई जुए में है, कोई किसी गंदे काम के अंदर है, कोई जो है बेटियां कहीं और जा रही हैं, बेटे कहीं और जा रहे हैं। क्या करूंगा मैं, तेरी बाजुओं को क्या कर दूंगा, बेकार कर दूंगा। इसलिए खुदा का जिंदा कलाम हमें सिखाता है, मेरे साथ रहिएगा, मत्ती 5वां बाब उसकी 6ठी आयत के अंदर लिखा है, सुनिए सुनिए, आपने सुनना है, वहां लिखा है मुबारक वो है जो रास्तबाजी के भूखे और वादे भूखे प्यासे ने जी, रास्तबाजी के, जो भूखे किसके हैं, रास्तबाजी। रास्तबाजी क्या है, रास्तबाजी देगों का नाम नहीं है, रास्तबाजी बड़े बड़े हड्डियों का नाम नहीं है, रास्तबाजी नेक कामों का नाम नहीं है। रास्तबाजी क्या है, रास्तबाजी लायक तौर पर कलाम को सुनना, अपनी जिंदगी के अंदर रखना, उस पर अमल करने का नाम है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कौन भूखा है, कौन प्यासा है, इसने कहा जो रास्तबाजी का भूखा और प्यासा है वो मेरे पास आए, क्योंकि कलाम खुदा ये फरमाता है जो रोटी आसमान से उतरी वो कौन है, मैं हूं। रोटी आसमान से उतरी वो कौन है, मैं हूं। यीशु मसीह कहता है, इसलिए कहता जो रोटी ये खाएगा, सुनिए, जो रोटी ये खाएगा, ये रोटी जो खाएगा ये है वो रोटी जो आसमान से उतरी है। इसलिए उसने कहा जो ये रोटी खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा, अब तक भूखा ना रहेगा बल्कि जीता रहेगा। मेरे याद रखिए, खुदा के कलाम के अंदर आपकी जिंदगी लिखना चाहता हूं, यीशु मसीह जो भेड़ों का दरवाजा है, उसने कहा भेड़ों का दरवाजा, यार तो बड़ी आम जिया गल्लां ने कि मुश्किल गल्लां ने। भेड़ों का दरवाजा यीशु मसीह ने कहा भेड़ों का दरवाजा जो मुझसे दाखिल होता है उसके लिए चारा है। यहाँ खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, यूहन्ना 10वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जो इधरों चढ़ जाता है, जो इधरों चढ़ जाता है वो चोर और डाकू। सुनिए, भेड़ों का दरवाजा यीशु मसीह कहते हैं कौन है, मैं हूं। सुनिए, एक बहन थी, उसकी बड़ी खूबसूरत गवाही है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। बहन कहती मेरे बच्चे होते थे मर जाते थे, या जब होते थे बीमार हो जाती थी। कहते मेरी फिर 2 बेटियां होगी, 3 होगी, 4 हो गई। फिर मेरी सास एक दिन मुझे कहती है आ तुम मैं दवाई लेकर दो। अक्सर हमारे यहाँ होता है। कहती मैं चली गई और मैं जब दरवाजे से गुजरी तो आगे तख्ता बड़ा सा गोल तकिया उसके ऊपर रखा हुआ, वहां एक बाबा बैठा। कहती जब मैं दरवाजे से गुजरी मैंने कहा खुदावंद ये तो वो दरवाजा ही नहीं जिससे मैं आना चाहती थी। तूने कलाम के अंदर कहा
भेड़ों का दरवाजा तो तू है और मैं तुझसे गुजरना चाहती थी, देख अब मैं मजबूर हूँ, बोल सकती नहीं हूँ, सास सामने है, आगे बाबा बैठा हुआ है, मैं इसके पास नहीं आना चाहती थी लेकिन आ गई हूँ, अब मैं तेरे पास आई हूँ, तू मेरे अंदर आ जा। जब तक वो तख्त के सामने बैठी उसने कहा, खुदावंद मैं तेरे पास आ गई हूँ, तू मेरा दरवाजा, मैं तेरी भेड़। कहती है मैं अपने दिल के अंदर उसको बुलाती रही, उसको पुकारती रही, कहा मैं तेरे पास ही हूँ, तू मुझे संभाले रख। उसकी सास उस बाबे के पास बिठा दिया, कहती बाबा जी जरा देखो नजर ते मारो, बड़ा किसी ने जादू किया है, टूना किया, किसी ने मुंडे साढ़े बन दिते ने, होंदे ही नहीं है। बाबा आधा घंटा उसके ऊपर दुआ करता रहा, जो उसे मंत्र आता था पढ़ता रहा, जो उसे आता था करता रहा, लेकिन वो आधा घंटा बेटी कहती है, मैंने कहा यीशु मैं तुझसे जुदा नहीं होना चाहती, मैं इस दरवाजे से गुजरना नहीं चाहती, तू भेड़ों का दरवाजा, मैं तेरी भेड़ हूं, मैं तुझ में से होकर, तुझ में से गुजर कर मैं इस चीज को हासिल करना चाहती हूँ। मैं ना इस तरफ से चढ़ना चाहती हूँ ना मैं इस तरफ से चढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि तूने कहा जो मुझसे दाखिल नहीं होता इधर से चढ़ जाता है, इधर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। देख मैं चोर और डाकू नहीं बनना चाहती। आधा घंटा बाबा लगा रहा दम पढ़ने, जो ने दम अंदर सारे पढ़ सुटे, उस बाबे को कुछ नहीं मिला। वो कहता है आधा घंटे से मैं इस पर मंत्र पढ़ रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना ही कोई मंत्र इस पर असर करता है ना ही करेगा। पहले नुका ले जाए बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। आधा घंटा तक वो लगा रहा, लेकिन वो अपने खुदा के सामने, अबलीस के सामने लगा रहा। लेकिन जो बेटी थी वो जानती थी भेड़ों का दरवाजा यीशु मसीह है, उसने मुझे इसलिए नहीं चुना है कि मैं जाकर ये फल लाऊं, अबलीस के फल लाऊं, उसने मुझे चुना है ताकि उसकी नाम की गवाही ठहरे। और वो बेटी ये कहती है कि खुदा ने उस दिन के बाद से, जबकि मैं उस अमीर से थी, खुदा ने उसके बाद मुझे 2 बेटों से नवाजा। हालेलुया। उसने कहा मैंने अबलीस से नहीं लेना, तूने मुझे इसलिए मुकर्रर नहीं किया कि मैं अबलीस के फल लेकर तेरे पास आऊं। देख मैंने ये गवाही नहीं देनी कि इस बाबे ने मेरे पे दुआ की, इस बाबे ने मुझे दुआई दी और मुझे ये बेटा मिला, और मैंने ये गवाही देनी है तूने मुझे चुना है, मैं तेरी भेड़ हूं, तू मेरा खुदा है, तूने मुझे चुना है कि मैं तेरे नाम की गवाही दूं। मैं ये ना कहूं कि बाबे ने दुआ की थी मुझे मुंडा लब गया, मैं कहूं हाँ मैं अपने जिंदा खुदा के पास गई, उसने मेरी उम्मीद को पूरा किया। हालेलुया। और मैं पूछा ना कितने लोग बाबे को जाने के संग नहीं मन रहा, मन रहा किसी ने नहीं मन रहा, जान दे कि नहीं जानते, नहीं जानते। आइए मैं आप किसी की मिला, अगर आप चाहते हैं, आप शिफा पाना चाहते हैं आज, तो मैं आपको खुदा ने मुकर्रर किया फल दीजिए। आपने खुदा ने मुकर्रर किया है कि वो फल लाओ फिर मुझसे मांगो। खुदा के कलाम के अंदर मैं आपकी जिंदगी में रखना चाहता हूँ। याद रखिए खुदा के कलाम के अंदर जब हम मत्ती 26 बाब के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर हमें सुनिए बात सुनने वाली आखिरी बात है, कलाम छोटा ही होगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे। आपने तैयारी करनी है। वहां पतरस खुदा यीशु मसीह से कहते हैं, जब खुदा गतसमनी बाग की तरफ जा रहे हैं, सुनिए तो वहां पतरस कहता है खुदावन सारे लोग तो खा जाएंगे, सारे लोग तो हट जाएंगे, सारे लोग जो है वो ठोकर खाएंगे, मैं ठोकर नहीं खावांगा। कहता है भाई मैं नहीं ठोकर खावांगा, अभी बीबी तर जाएगी बाबे कल मैं नहीं जावांगा, अभी तर जाएगी, अभी गुनाह करेगी मैं नहीं करांगा। उसका रवैया कुछ इस तरह का था। लेकिन खुदा ने क्या पलिया इधर आ, इधर आ, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा क्या करेगा, 3 बार क्या करेगा। उसने कहा मैं दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा हूँ, मेरे सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता, और मैं तो आने वाले अयाम से, कदीम जमानों से
आने वाले फ्यूचर को भी जानता हूँ। बेशक खुदा आपके आने वाले फ्यूचर को जानता है, आपके दिलों को जानता है। आप खुदा को झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए कलाम ये सिखाता है, पतरस जब उसके सामने आया, जब वक्त आया, उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा तू भी उसके साथ? उसने कहा मैं तो उसको लानत भेजता हूँ। क्या कहा जी उसने? उसने अपने नजात हिंदे पर क्या किया जी? लानत भेज दी। कहता मैं इसको लानत भेजता हूँ। 3 बार उसने खुदा का इनकार किया। कितनी बार किया जी? तो तुसी कितनी बार करते? हम तो 1000 बार कर जाते हैं, 1000 बार कर जाते हैं, बार बार कर जाते हैं। लेकिन कलाम खुदा आपकी जिंदगी में रखना चाहता हूं, खुदा आपको जानता है, आप कितने भी गुनाहगार हैं, आपको चुना गया है, आप कितने भी जिंदगी के अंदर मुश्किल के अंदर है। अगर आप सोचते हैं कि मेरी गुनाह के सबब से मेरी दुआ नहीं सुनी जाती, लेकिन मैं आपकी जिंदगी में यह बात रखना चाहता हूं, आप चुने हुए लोग हो, आप फिदिया दिए हुए लोग हो। आइए उस पतरस की जिंदगी से सीखते हैं किस तरह उसने अपनी जिंदगी को बदल लिया। कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जब उसको ये बात याद आई कि मेरा यीशु ने कहा था कि भांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, 3 बार झूठ बोला, गुबरगे ने भांग दी, उसको याद आया, उसने सर पकड़ा और क्या लिखा है कि जब उसे ये बात याद आई कि मैंने यीशु मसीह का अपने निजात दहिंदे का गुनाह किया है, तो लिखा है वो जार जार किया जी, जार जार रोया रोया। लिखा है वो जार जार पछताया अपनी जिंदगी पर, अपने गुनाह पर, और लिखा है वो जार जार रोया इस बात के ऊपर। मैं आपकी जिंदगी में इस बात रखना चाहता हूं, जब मुकाशवा 3 बाब उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है जिनको मैं अजीज रखता हूं। मैं आपकी जिंदगी में मेरी बहन, मेरी बेटी, यहाँ जितनी भी बैठी है, वो लिखा है जिनको मैं अजीज रखता हूं। और हमने ये सुना खुदा हमें अजीज रखता है, उसने हमें चुना है ताकि हम फल लाएं। इसलिए जिनको मैं अजीज रखता हूं उन सब की क्या करता हूं? मलामत भी करता हूं और तंबी भी करता हूं। बस यहाँ लिखा है बस सरगर्म हो और क्या कर? तौबा कर। क्या कर जी? सरगर्म हो। और बाजी लिखिए खुदा को सुस्त घुटने ढीले हाथ खुदा को पसंद नहीं है। तो जड़े तो जवाब नहीं देंगे यार। खुदा को सुस्त लोग पसंद नहीं है, खुदा को सुस्त लोग पसंद नहीं है। इसीलिए वो आपको देता है बस सरगर्म हो और जोश दिखा। आज जोश दिखाइए, अबलीस को कहिए जो बंधन तूने मेरी जिंदगी के अंदर बांध रखा है, जो तूने पहाड़ मेरी जिंदगी के अंदर रखा है, मेरा यीशु मसीह कहता है बस सरगर्म हो, यानी कहता है बस तू तौबा कर। और लिखा है इसीलिए आज खुदा कलाम उनके लिए नहीं कहता, अक्सर आपने सुना है खुदा कहता है जिनको मैं अजीज रखता हूं उन्हें कहता है सरगर्म हो। इसीलिए वो कहता है देख मैं तेरे दिल पर खड़ा क्या करता हूं, क्या करता हूं जी? अरे मैं कल ही कलाम पढ़ी जा रहे यार, मैं कहना तुसी भी पढ़ो मेरे नाल यार। आज मैं कोई आयत ऐसी नहीं बोली जेडी कोई नवी आयत हो। कौन जी की आयत ने सारिया लोगों को आती। किनके खुदा कह रहा है मैं दिल फटाता हूं? जो तौबा करने के लिए तैयार है। सारिया नहीं सुना रहा। कद समझते हो कि कमर उन्होंने कह रहा, पतिया पासा उन्होंने कह रहा, इन्हों कह रहा, नहीं कह रहा। लिखा है कि बस सरगर्म हो और तौबा कर, मेरी बात को सुन। देख मैं खड़ा हूं, आज खुदा खड़ा है, आज खुदा खड़ा है जो कहता है देख मैं खड़ा हूं और मैं खटखटाता हूं। जो मेरी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ, मैं और बाप उसके साथ आएंगे और क्या करेंगे? साथ खाना खाएंगे। क्या खाना खाएगा यीशु जी? अरे बिरयानी खाएगा? वो यार दसो भी कलाम सुनने आए हुए कुछ सेक के भी जाओ ना। कहता मैं आऊंगा, लिखा है मैं आऊंगा और खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ, यानी हम दोनों भी हैं। और जब मेरी आवाज में दोनों बैठ के क्या करेंगे? खाना खावांगे, दोनों बैठ के बिरयानी खावांगे।
ना भाई जी नहीं रूह की खुराक हाँ रूह की खुराक भैन जी है ही गल है ना मैं कहनी हाँ ठीक है बिरयानी खावा आइए मैं आपको जिंदगी में रखना खुदा का खाना क्या है। यूहन्ना 4 बाब उसकी 34 आयत में जब ये लोगों ने कहा ना शागिर्दों ने आजा बाजी यीशु ने कहा कि आ खाना खाइए, उसने कहा मेरा खाना क्या है, मेरा खाना ये है कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं यीशु का खाना कौन सा है कि अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। और वो कहता है जो मेरी आवाज को सुनेगा और दरवाजा खोलेगा और पतरस की तरह वो अपने गुनाहों पर नजर करेगा, कलाम पर नजर करेगा और रो रो कर यानी उसको सार रोया। उसने कहा खुदावंद देख मैंने तेरे कलाम को ठुकरा दिया और आज जो यहाँ पर बैठा हुआ शख्स है जो इस बात का इकरार करेगा हाँ खुदावंद उसने तो 3 बार इनकार किया और मैं तो हर रोज उठते बैठते तेरा इनकार करता हूँ और मैं तो अपने ख्यालों से अपनी आंखों से अपनी जबान से अपने रवैये से अपनी चुगलियों से अपने झूठ से हर रोज मैं तुझे धोखा देता तुझे लौटता हूँ तेरा इनकार करता हूँ। देख आज मैं भी उस पतरस की तरह तेरे हुजूर इकरार करता हूँ और कलाम ये सिखाता है खुदावंद कहते हैं अगर तू ऐसा इकरार करेगा मैं तुझे अजीज रखता हूँ, मेरी आवाज को सुनेगा जिस तरह मैं बाप की मर्जी को पूरा करता हूँ तुझे भी साथ ले लूंगा तुझे भी जोर बख्शूंगा और अब दोनों मिलकर खुदा की मर्जी को जमीन पर पूरा करेंगे। जमीन ये है, इस जमीन की बात नहीं हो रही बहन जी भरा जी, वो जमीन ये है, वो जमीन ये है जहाँ कलाम उगता है जहाँ कलाम बोया जाता है और ये वो पथरीली जमीन भी ये है, जारियों वाली जमीन भी ये है और ये जरखेज जमीन भी ये है। वो कहता है मैं तुझे ऐसा जरखेज जमीन बना दूंगा कलाम तेरे अंदर आएगा और देख मैंने मर्जी खुदा की पूरी की तू भी खुदा की मर्जी को पूरा और मिलकर करेंगे। कब करेंगे? जब तू सर गर्म हो जाएगा और कलीसिया के अंदर बैठा इस इबादत के अंदर बैठा और तू सुस्त ना होगा करता रहेगा, तेरे हाथ भी प्रस्तिश करे, तेरी आंखें प्रस्तिश करे, तेरे होंठ प्रस्तिश करे और तेरा दिल प्रस्तिश करे, कहे आज मैंने अपनी भूख को अपनी प्यास को जो कलाम की थी उसने कहा जो भूखा प्यासा है मेरे पास आए मैं आबे हयात में से उसको पीने को दूंगा। आइए ऐसी प्यास रख लीजिए, ऐसी भूख रख लीजिए अपनी जिंदगी के अंदर। पतरस जब इस तरह की भूख रख ली इस तरह की प्यास रख ली सुनने वाली बात है खुदा फरमाता है जब उसने ऐसी भूख प्यास रख ली और ईद पेंतिकोस्त के ऊपर जब वो जमात के अंदर था पाखरू कसरत से उतरा वो पाखरू से भर गया और उसने पहला कलाम कलीसिया के अंदर पेश किया और उस पहले कलाम के वसीले से उसने 3000 लोगों को जीत लिया। किसके लिए जीत लिया जी? किस लिए जीत लिया? 3000 जाने यीशु के लिए जीत ली उसने। किनिया जीत लिया जी? 3000 बाजी किनिया जीतिया? 3000 पहला कलाम सुनाया। काम कितों शुरू किया उन्हें? तौबा से काम शुरू किया। यीशु के पास आया, यीशु ने पाखरू को भेजा, उस पाखरू से भर गया और 3000 लोगों का तोहफा यीशु के लिए ले आया। कितने हजार का जी? 3000। अगर मैं पूछूं इस जमात के लिए कितने लोग खुदा की जिंदगियां जीत के लाए? यहाँ जो मीटिंग बहन करती है भाई करते हैं ये टीम करती है, कितने लोग हैं जो ये पतरस फल लेके आया। उसने कहा मैंने तुमको मुकर्रर किया क्या लेके आओ? क्या लेके आओ जी? फल लेके। कितने लोग का फल लेके आया वो? कितने ना बाजी? 3000 का फल लेके आया। 3000 जाने जीत ली इसने। अब यहाँ जितनी बहनें बैठी जितने भाई बैठे हुए बाजी मेरी बात सुनो, कोई शख्स है जो कहे हाँ मैं इस मीटिंग के लिए इतनी जाने लेकर आया, सच्ची सच्ची गल करनी यीशु की गल होने जे। इसके साथ वादा है आगे, इसके साथ क्या है जी आगे? और मैं अगला वादा सुनना कितने लोग इस मीटिंग के लिए लोग लेके आते हैं?
सही सही गल दस। उसने कहा तुम मेरे लिए क्या लाओ, की ले आओ मेरे वास्ते। भैन जी सुनो, तुम राज की गल दसन लगा जे, बड़ी राज की गल जे, तुहानू शायद किसी ने सुनाई नहीं हुई। उसने कहा मेरे लिए क्या लाओ, फल लाओ। फल लाओ, और फल लाओ फिर मुझसे मांगो, तुम्हारा बाप तुम्हें देगा। हुण हदिये दी गल नहीं हो रही, ना बिरयानी की गल हो रही, गल है वे नजात के लिए कितने लोग तुम मीटिंग के लिए लेकर आए। हुण भैन कली कोशिश कर रही है बचाने की। अब फल लेके आप कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया, मुझे बताएं जरा। ते बाकी की 10 रुपया नोट लेके आए, लेके आए हैं। तो यसू ਨੂੰ 10 रुपये नहीं चाहिए, यसू ਨੂੰ 1000 भी नहीं चाहिए, यसू 10,000 भी नहीं चाहिए। अगर 10,000 10 लाख से दुआएं कबूल होती तो अमीर आदमी की तो कभी दुआ आती नहीं होती। अमीर आदमी कभी गरीब ही ना होता, अमीर आदमी में कोई बांझ ना होता, गरीब आदमी की मट्टी, अमीर आदमी के अंदर कोई भी ऐसी बरकत, हर बरकतें होती, गरीब खाली दा खाली होता। खुदा को क्या चाहिए, फल चाहिए। अब जो आपने काम अगर चाहते हैं आपकी जिंदगी से पहाड़ निकल जाए, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी से बीमारी निकल जाए, आप चाहते हैं आपकी मट्टी भर जाए, आप चाहते हैं हाथ में कर्ज है, खुदा रो रो के मर गया, कर्ज उतरता नहीं पिया, औलाद ठीक नहीं हो रही, कारोबार चल नहीं रहा, तो आइए पतरस की तरह पहले तौबा कीजिए, अपनी जिंदगी को बदलिए, फिर यीशु मसीह की गवाही के लिए, निजात के लिए लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। अपनी जिंदगी की निजात के साथ साथ लोगों को निजात के लिए इकट्ठा करें। यीशु से कहें खुदावंद देख तूने फल मांगा, 10 लोग लेकर आया हूँ, खुदावंद तूने फल मांगा, 3 लोग लेकर आया हूँ, खुदावंद तूने फल मांगा, 4 लोग ले आया हूँ, खुदावंद देख तेरा वादा है फल लेकर आ, देख मैं फल ले आया हूँ, मैं 4 लोगों को निजात के पास, कलाम के पास, जिंदगी के चश्मे के पास लेकर आया हूँ। अब तेरा वादा है कि तू मेरी दुआ को सुनेगा। अब देख मेरी जिंदगी के अंदर ये पहाड़ है, इसे हटा दे, मेरी जिंदगी के अंदर ये बीमारी है, हटा दे, मेरी जिंदगी के अंदर नशे की लानत मेरे बच्चों के अंदर है, आज इसे भी निकाल दे। यकीन माने आप अपना वादा पूरा कीजिए, और यीशु मसीह इंसान नहीं कि झूठ बोले। हालेलुया। खुदा झूठ बोलता है नहीं। जब उसने कहा कि वो देगा तो फिर वो देगा। आखिरी बार उसने कहा जाल डाल, उसने कहा खुदावंद सारा दिन रात मुझे कुछ नहीं लगा। उसने कहा वो जानता था कि सुबह को मछलियां नहीं होती, सब नीचे होती हैं, लेकिन उसने कहा जाल डाल। उसने ये नहीं कहा मेरी तो तजर्बा ही बड़ा है भाजी, मैं तो इतना तजर्बा है, बुढ़ा हो गया मछलियां फड़ फड़ के, ते कोई पागल है जो तेरी पानी से मछलियां न पड़े। किसने कहा जाल डाल? यीशु ने। किन्ने क्या बाजी? यीशु ने। क्या कहता जाल डाल। उसने जाल डाला, जाल खाली सी के भर गया सी, खाली भर गया। कुछ भी जिंदगी के अंदर ना हो, अगर दरिया में कुछ भी नहीं तो मुहैया मेरा यीशु करता है। बीमारी में कुछ भी नहीं है, आपकी जिंदगी बड़ी मुश्किल के अंदर है, शिफा मेरा यीशु कहता है। जब यीशु कहता है जाल डाल चल तो फिर चल रहे। जब यीशु ने कहा फल ला और फिर मुझसे मांग तो मैं दूंगा, तब वो वादा पूरा होगा। जोर से कहिएगा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और जब ऐसे खटखटाओगे तो बरकतों के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने वादे की मदद आपको देगा। कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।